Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, uh, chapter 2, entitled Contents of the Gita Summarized, verse number 41. So you can repeat the verse after me. Vyavasayatmika buddhir ekeha kuranandana bahushakha hi anantascha buddhayo vyavasayinam व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरुनन्दना बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Okay, translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Purport. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrit Madhya 22.62 states, Shraddha Shabde Vishwas Kahe Sudrida Nishchay Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hai. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagement of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvam iti sa Mahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudev or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches, so by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual masters as follows: Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya aprasadan na gati kutopi. Dhyayam stuvam tasya yashastri sandhyam vande guru shri charanaravindam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied,
And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should, therefore, meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically, but practically, when there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So, the translation I'll read again. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे आके आप लोग से इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, भगवत गीता के इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में कुछ कहने का आपने सेवा दिया है, ये उपलक्ष्य दिया है, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तो ये एक उपमा जैसे है, एनालॉजी, जो कृष्ण बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। जो अभी जो कोई स्टूडेंट होता है, जो अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, जो स्टूडेंट होता है वो एक स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज जाती है, जो भी है ना।
तो जब वो जाते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे बस जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि एकदम फोकस्ड कि मुझे क्लास में एकदम अव्वल नंबर पे आना है, मुझे एकदम बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझना है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका एकदम फोकस्ड रहता है। इवन जो लोग काम करते हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं वगैरह, वो भी मतलब बहुत ज्यादा उनका ऐसा उत्साह नहीं रहता है काम करने में कि हाँ ठीक है रोज सुबह जाना है, पंच करना है, अपना काम करना है, निकलना, चल खत्म करो, निकलना है यहाँ से। हाँ मतलब सबका ज्यादा ऐसे ही रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या कह रहे हैं, इसके बारे में जरा एक सोचने जैसा है। व्यवसाय यानी बिजनेस। अभी जो बिजनेस वाला व्यक्ति है, अभी आप जिसके लिए काम करते हैं वो तो बिजनेस वाला है कि नहीं, उसका खुद का बिजनेस है। तो बिजनेस वाला जो व्यक्ति है वो कितना फोकस्ड रहता है, चाहे उसके नीचे काम करने वाले लोग इधर उधर भटक रहे हो, वो बड़ा फोकस्ड रहता है। वो अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी उसका ध्यान नहीं हटता। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एकेह कुरुनंदना, एक ही उनका लक्ष्य है, एक ही उनका एम है, एक ही उनका एक उद्देश्य है। और उसी के साथ उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बस वो वही दिन रात वही सोचते हैं कि इस व्यवसाय को मैं कैसे और बढ़ाऊं, इसमें और कस्टमर कैसे लाऊं, कैसे इसमें मैं और कुछ वृद्धि लाऊं, कैसे इसको ग्रो करूं। बस उनका एकमात्र यही लक्ष्य रहता है, एकाग्र रहते हैं यही सोचने में कि कैसे मेरे व्यवसाय को बढ़ाऊं। तो ये बड़ा सुंदर एक उपमा दिया है भगवान ने, एनालॉजी दिया है, जिससे हम लोग समझ सकें। क्योंकि हमारे लेवल पे हम लोग को एकदम व्यवसायत्मिका बुद्धि ये समझ में शायद ना आए कि व्हाट इज दिस वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन, क्या है ये। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना। तो जैसे कि ये जो श्लोक है ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक जो है श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य हैं, वो भी इस श्लोक को उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि 1950 में इस्कॉन कब फॉर्म हुआ था? 66, मतलब इस्कॉन फॉर्म होने के 16 साल पहले। तो श्रील प्रभुपाद जी जो थे तभी वो मतलब उन्होंने भगवत गीता में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे एक प्रमुख आचार्य हैं, उन्होंने जो ट्रांसलेट किया हुआ श्रीमद् भगवत गीता है वो उन्होंने पढ़ा था। और उसमें खास करके ये जो श्लोक है व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसका जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो तात्पर्य दिया था ये उन्होंने पढ़ा था। और ये पढ़ के उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि ये पढ़ के मुझे इनका जो तात्पर्य था, जो उन्होंने तात्पर्य लिखा था इस श्लोक के ऊपर, वो तात्पर्य पढ़ के वो मैं एकदम दंग रह गया। कल के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये तात्पर्य। और उन्हें अपने गुरु ने 28 साल पहले, देखो ये होता है एक एक क्या बोलते हैं, एक जन्म जो जिसमें हम लोग को समझ नहीं सकते, गिनती नहीं होती है भक्ति में, कभी गिनती मत करो। क्योंकि समझो कि अगर हम अपने लक्ष्य से एकदम जुड़े हुए हैं तो गिनती में मत जाओ कि कितने साल लग गए, कितने साल लग गए, कितने जन्म लग गए, ये भी नहीं। जैसा भगवान की इच्छा है वैसे सब चीज अपने आप होते रहते हैं। तो उनको इंस्ट्रक्शन कभी दिया था उनके गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला था उनको कि आप इस भगवत गीता और चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षा दी है वो अंग्रेजी भाषा में आप पाश्चात्य देशों में जाके इसका प्रचार करो। ये कब बोला था? 1922 में। हम लोग किस साल की बात कर रहे हैं? 1950। और हुआ कब? 66, यानी 44 साल बाद इस्कॉन शुरू हुआ। और इसका जो इंस्ट्रक्शन था, निर्देश था, वो गया था 1922 में। तो कहते हैं कि जो मेरे गुरु ने मुझे एक निर्देश दिया था, ऑर्डर दिया था, जो भगवत कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो अंग्रेजी भाषा में उसका प्रचार करने का, कहते हैं कि मेरे मन में था ये एक रिजॉल्व था कि ये मुझे करना है।
और मतलब जिंदगी भर वो वैसे ही सोचते रहे कि कैसे करूं कैसे करूं, लेकिन ये करना है ये उनके मन में और ज्यादा एकदम फिक्स हो गया जब उन्होंने ये तात्पर्य पढ़ा। तो आप लोग ये तात्पर्य सुनना चाहेंगे? हाँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि द बेस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस आई कैन हैव इज इंटेलिजेंस यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो कहते हैं कि बहुत लोगों के पास बहुत सारी बुद्धि होती है। हाँ, इट इज सेड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस? 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, 9 तरीके के बुद्धि होते हैं। हाँ, मतलब जो टीचिंग लाइन में वो समझते हैं, तो 9 तरह की बुद्धियां होती हैं। तो वो कहते हैं सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम बुद्धि वो है जो बुद्धि मैं कृष्ण की सेवा में मैं उसका यूज कर सकूं, उसका इस्तेमाल कर सकूं। और फिर वो कहते हैं कि वो बुद्धि स्थिर मानी जाती है। मतलब एक बुद्धि जो है, किसी किसी की बुद्धि, जैसे ये इस श्लोक में कहा गया है कि बहुशाखा ही अनंतश्च, जो जिनकी जिनकी बुद्धि बहुशाखा है, मतलब बहुत सारे चीजों में फैली हुई है, इधर भी उधर भी ये भी वो भी। हाँ, वो नहीं, वो कहते हैं कि वो बुद्धि को हम स्थिर स्थिर कह सकते हैं जब वो गुरु के निर्देशों पे, गुरु के इंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से एकदम डटा हुआ है। गुरु के क्या निर्देश हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या ऑर्डर्स हैं हमारे लिए कि आप हरे कृष्ण का नाम जप करो, उनके जो लीलाएं हैं उनको उनके ऊपर अध्ययन करो, फिर उनकी पद कमलों में सेवा करो। तो ये जो गुरु ने निर्देश दिए हैं वो मेरी साधना भी है और वो मेरा जीवन भी है, ऐसे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कह रहे हैं कि ये जो निर्देश है मेरे गुरु के, ये मेरे जीवन के लिए मेरी साधना भी है और मेरे जीवन का लक्ष्य भी है। और कहते हैं ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जब अभी अभी भक्ति शुरू किया है मैंने, मतलब अभी मैं कच्चा कच्चा हूं तो तभी ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो कहते हैं कि मेरे भक्ति के शुरुआत में भी ये महत्वपूर्ण है, और जब मैं परम दृश्य को पालूंगा, मतलब अल्टीमेट भक्ति का अल्टीमेट गोल पालूंगा, तभी भी यही गुरु के जो आदेश हैं, यही मेरे लिए, यही मेरा फोकस है। एकेह कुरु नंदना, मतलब यही मुझे इसी पे ध्यान देना है। वो कहते हैं आई डिजायर टू ओनली फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। मेरी इच्छा सिर्फ ये है कि मेरे गुरु के आदेशों का पालन कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं मेरी इच्छा है। आरना कोरीबो मने आशा, और कोई मेरे मन में आशा नहीं है, बस मुझे गुरु के आदेश का पालन करना है। फिर वो कहते हैं, देखो कितना भारी चीज कह रहे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं जो अपने गुरु की स्तुति कर रहे हैं, और गुरु के बारे में इस श्लोक में 2.41 के श्लोक के तात्पर्य में ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, ये भौतिक जगत है या नष्ट हो गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, देर इज नो लॉस फॉर मी, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है कि मेरा फायदा हुआ, मेरा नुकसान हुआ, ये भौतिक जगत नष्ट हो गया या भौतिक जगत की वृद्धि हो गई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई इसमें नुकसान नहीं। मुझे सिर्फ अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। आई मस्ट सिंपली कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो कहते हैं बीइंग फिक्स्ड अपॉन हिज ऑर्डर, यानी कि गुरु का जो आदेश है उस पे एकदम फिक्स्ड, स्थिर रहना एकदम, मतलब ये जो गुरु ने कहा है ये मुझे किसी भी हालत में, किसी भी हाल में मुझे इसका पालन करना है। ये जो मनोवृत्ति है वो कहते हैं दिस इज डिटरमाइंड इंटेलिजेंस। डिटरमाइंड को क्या कहेंगे कि दृढ़, हाँ, दृढ़ बुद्धि और भक्ति। एंड only by being fixed on his order can such determined intelligence prosper। मतलब ये कहते हैं कि उनके आदेश पे केंद्रित, एकाग्र रहना, यही एक दृढ़ बुद्धि है।
और ये दृढ़ बुद्धि को और वृद्धि करने के लिए हमें उनके आदेश पे फिक्स्ड रहना है. सो मतलब वन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अदर, ईच अदर, ऐसे. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये एक तात्पर्य पढ़ा इस श्लोक का, तो उन्हें उसमें से भयंकर एक स्फूर्ति मिली. देखो 1950 में उन्होंने ये पढ़ा, तभी उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया. कहाँ पे? झांसी में. झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया. 1 साल, आई थिंक 1-1.5 साल तक चला, लेकिन फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया. उनको मतलब श्रील प्रभुपाद को ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो मतलब जिंदगी एकदम फिक्स, एकदम सेट हो गई उनकी, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एकदम मक्खन के जैसे चल रहा है. नहीं, बस दिक्कतें दिक्कतें आई उनको. शुरुआत में अगर आप देखो इस्कॉन का जो जर्नी है, श्रील प्रभुपाद का जो जर्नी है, उसमें कितने बाधाएं, कितने दिक्कतें, मतलब गिनो तो बस गिन नहीं पाओगे, इतने दिक्कतें. सो मेनी डिफिकल्टीज, मेनी टाइम्स इफ यू रीड. अगर आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, कितनों ने पढ़ा है प्रभुपाद लीलामृत? थोड़े जन पढ़ रहे हैं. जिन्होंने पढ़ा है फिर से पढ़ो, जिन्होंने जो पढ़ रहे हैं पढ़ो, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है पढ़ो, और जिन्होंने खरीदा नहीं है, अभी ये अच्छा महीना है बुक मैराथन का, अब प्लीज खरीदो, है ना. सो ये लीलामृत अगर आप पढ़ते हो तो बहुत बार आपको ऐसा एक एहसास आएगा कि अभी ये छोड़ देंगे, या तो शरीर त्याग देंगे, या तो ये गुरु का मिशन छोड़ देंगे. ये तो इसके आगे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब नामुमकिन है. यहाँ तो मतलब पूरी हार हो चुकी है उनकी, नहीं होगा अभी. आपको ऐसा एहसास आएगा, बट उनको ऐसा कभी एहसास नहीं है. ही मे हैव स्ट्रगल्ड. मतलब दिल्ली में वो बैक टू गॉडेड मैगजीन का जो एक बनाते थे, वो खुद लिखते थे, खुद पेपर खरीदते थे, खुद प्रिंट कराते थे, खुद बाइंड कराते थे, खुद जाके लोगों को बेचते थे, उसका लक्ष्मी लेके वापस बीटीजी के प्रिंटिंग में. मतलब इतना उनका दृढ़ संकल्प था कि गुरु की सेवा करनी है, गुरु ने जैसा बोला है वैसा करना है. तो उसकी वजह से इतना मेहनत करते थे. बहुत बार वो बेहोश हो जाते थे दिल्ली के गर्मी में. मतलब खाने को नाश्ता नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब नो लक्ष्मी, हैड नो मनी, बट फिर भी बड़े दृढ़ संकल्प के साथ. तो ये है हमारे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इसी श्लोक को पढ़ के स्फूर्ति ली और फिर से अपने गुरु के आदेश के ऊपर एकाग्र हो गए, और उसी एकाग्रता से उन्होंने ये इस्कॉन संस्था खड़ी की, जिसकी वजह से हम सब इस कमरे में बैठ के भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं. वरना कहाँ हमारा ये इतना नसीब कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं. अभी शनिवार का शाम है, चलो जाके पिक्चर देखते हैं, यही होती है हमारी दशा. कहाँ हम लोग सत्संग में आके बैठते, है ना. श्री प्रभुपाद ने मेहनत की, उन्होंने दिखाया ये व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, ये दिखाया, उसी लिए हम लोग यहाँ बैठ के भगवत गीता पाठ कर सकते हैं. तो एक शुद्ध भक्त जो होता है, उनके जीवन का ये प्रयोजन यानी पर्पस क्या होता है? What is the purpose of the life of a pure devotee? जरा इसके बारे में कुछ पल हम लोग चर्चा करेंगे. तो anyone would like to share? कोई बताना चाहेगा कि जो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त मतलब हम जैसे नहीं, हम तो मतलब हम लोग सब एकदम स्ट्रगलिंग भक्त के कैटेगरी में है ना, कनिष्ठ के कैटेगरी में. लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, उत्तम अधिकारी जो होता है, हाँ, उसके जीवन का प्रयोजन, उसके जीवन का लक्ष्य, पर्पस, मिशन क्या होता है? जो उसे प्राप्त हुआ है वो औरों को देना है. ओके, और क्या? गुरु आज्ञा क्या? एग्जीक्यूटिंग. गुरु की जो आज्ञा है, गुरु का जो आदेश है, उसका पालन करना, ये उनके जीवन का मिशन होता है. उनके जीवन का मिशन ये नहीं होता कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मुझे कृष्ण के चरण में जाके बैठना है, उनके साथ भजन करना है. ऐसा कुछ उनका उद्देश्य नहीं होता है, ऐसा कुछ उनका जीवन का लक्ष्य या कुछ नहीं होता है. उनका लक्ष्य एक है.
Their purpose is simply to fulfill the mission of their guru. जो उनके गुरु ने उनको जो लक्ष्य दिया है, जो उनको उद्देश्य दिया है, बस वही वही उसका पालन करना, यही उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है. So he is focused on only two things. One, fulfilling the mission. मिशन मतलब उद्देश्य, गुरु का जो मिशन है कि ये गुरु ने बोला है करने के लिए, उसका पालन करना, उसको फुलफिल करना. और दूसरा, टू प्लीज गुरु एंड कृष्ण. गुरु और कृष्ण भगवान को मुझे प्रसन्न करना है. इसके अलावा उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है. यही उनके जीवन का मिशन है. और जो गुरु का मिशन है, गुरु का जो उपलक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, वो उनके जीवन का भी उद्देश्य बन जाता है. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत दिलचस्प बात है कि अभी आप सोचो, अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मुझे बहुत पैसे कमाने, अगर मैंने ऐसा आपको बताया, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, किसी भी हाल में मुझे करोड़पति बनना है, महाकरोड़पति, अरबपति बनना है, अगर मैं ये आपसे कहूं, तो आप लोग क्या सोचेंगे? हाँ ठीक है, बनो, बनना है बनो, हमें क्या, हमें क्यों बता रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है ना. लेकिन ये ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य था कि ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का जो जो लेसन्स हैं वो अंग्रेजी भाषा में दुनिया भर में फैलाना है. हाँ, दैट सर्वत्र प्रचार होई में मोरा नाम. हाँ, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा कि मेरा नाम जो है गांव गांव, शहर शहर में, दुनिया भर में ये मेरे नाम का प्रचार होगा. तो ये जो उनका उद्देश्य था कि ये मुझे, मेरे गुरु ने ये उद्देश्य दिया है, मुझे ये इसका पालन करना है. इतने सारे लोग उस उद्देश्य के साथ कैसे जुड़ गए? इंटरेस्टिंग ना. बिकॉज कोई बोलता है मुझे करोड़पति बनना है, तो सब बोलते हैं तू बन, मुझे क्या है, मेरा क्या. अब ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य करोड़पति नहीं बनना है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे ये भक्ति जो है सारी दुनिया में बांटनी है. तो इस उद्देश्य के साथ सब लोग जुड़ गए. तो ये बड़ा दिलचस्प बात है कि जब किसी का उद्देश्य जो है उनके खुद से ऊपर उठ जाता है, when your purpose in life rises above your own interest, मेरे मतलब से ऊपर मेरा अगर इंटरेस्ट ऊंचा उठ गया, तो दूसरे लोग उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं. पीपल फील दिस इज समथिंग वंडरफुल, हमें भी इसमें भाग लेना है. जैसे कि ये जूहू बीच है, वर्सोवा बीच है, ये बड़ा गंदा, सब जगह प्लास्टिक रैपर, सिगरेट का ये वो कचरा फेंका हुआ, लोगों ने, लाखों लोग रह जाते हैं रोज कचरा फेंक के. तो मतलब वर्सोवा बीच मतलब वहां जाने जैसा नहीं, इतना गंदा हो गया था. एक कोई व्यक्ति आया अकेला, बड़ा प्लास्टिक बैग लेके आया और बस वो कचरा जमा कर करके वो जाके कचरे के डब्बे में डाल रहा था ताकि बीच थोड़ा साफ हो जाए. अभी एक व्यक्ति कितना कर सकता है? कितना कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता. लेकिन उसको देख के लोगों को लगा कि अरे यार, ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी इसको मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. तो जब कोई लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, ये कुछ ऊंचा सोच रहा है, कुछ बेटर सोच रहा है, कुछ मतलब उसके विचार एकदम मतलब सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए नहीं है, तो फिर लोगों को भी प्रेरणा मिलती कि मैं भी इसमें जुड़ जाऊं. लेकिन अगर वो खुद के लिए कर रहा होता, क्योंकि अगर वो, अभी समझो, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर वो कोई, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं आए हो, बट अगर वो पॉलिटिशियन होता, अगर कोई नेता होता, एमएलए होता या एक्टिंग एमएलए या प्रीवियस माझी एमएलए, एमएलए होता, और वो जाके वहां पे कचरा होता, तो सब लोग वो दिखा रहा है लोगों को कि मैं कितना साफ इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ. कोई उसके लिए इतना सोचता नहीं. लेकिन कोई देखो आम आदमी आके ऐसा करे, इमीडिएटली पीपल आर अट्रैक्टेड, है कि नहीं?
उसी तरह से शिल प्रभुपाद जो है, आप सोचो 70 वर्ष के व्यक्ति, यहाँ पे कोई 70 वर्ष का है, 70 एंड हायर कोई है? हाँ है थोड़े जन, हाँ आजी माता जी और प्रभु जी 70 के ऊपर है। हाँ, अभी 70 वर्ष के उम्र में अपना कंफर्ट जोन जहां वृंदावन में रह रहे थे वो छोड़ के वो एक पाश्चात्य देश में गए, जहाँ पे लोग, एक तो उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मतलब वशीला नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनको पता नहीं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं वो बॉस्टन हार्बर में बाहर आया शिप से, जो क्या शिप है, व्हाट इज द नेम ऑफ शिप, जलदूत, जलदूत से बाहर निकले तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैं अभी लेफ्ट लूं कि राइट लूं, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी आइडिया नहीं। बस पता था कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बस उतना उनका श्रद्धा था अपने गुरु के उद्देश्य पे, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये श्रील प्रभुपाद जी के पूरे जीवन में उन्होंने ये जो श्लोक है, हाँ, एकेह कुरुनंदना, है ना, कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना, ये श्लोक उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया कि मेरे गुरु ने जो मुझे उद्देश्य दिया है, जो उन्होंने एक मिशन दिया है, वो मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि मतलब और कुछ मुझे करना नहीं है जिंदगी में, यही करना है, एकदम फोकस थे। तो हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद थे ऐसे, और उनके शिष्य जो हैं, उनके शिष्य जो हैं वो भी ऐसे ही हैं। मतलब आप इसके बारे में एक एक विचार करो, एक एक पल के लिए जरा एक बार विचार करो कि कोई 19 साल का लड़का है, यहाँ पे कोई है 19, 20, 22, 25, हाँ कोई है एज, हाँ 20, हाँ तो ये आपका नाम यशवी जी, यशवी जी 20 साल की हैं। अगर अभी आपको यशवी जी आपको कहा कि आप जाके ना श्रीलंका में जाके एक इस्कॉन का सेंटर खोलिए, मैं, हाँ आप जाओ अभी, बट करना क्या है, जाओ और सेंटर चालू करो श्रीलंका में। अभी आप सोचो आपके मन में क्या आएगा विचार, अगर मैं ऐसा आपसे कहूं तो बोले ये क्या पागल है क्या, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बट आप सोचो कि अभी इस्कॉन एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, दुनिया में सब लोग जानते हैं इस्कॉन क्या है, हरे कृष्णा का प्रचार करते हैं, भगवत गीता पे आधारित है। भगवत गीता क्या है बहुत लोग को मालूम है, पहले किसी को नहीं मालूम था, खाली फिल्मों में देखा था, गीता पे हाथ रख के कहता हूँ जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ, इसके अलावा भगवत गीता किसी को मालूम ही नहीं था। अभी फिर कोई सबको पता है, तो अभी जाके प्रचार करना इज इजियर, है ना, कंपेयर टू 1965 1967, जहां पे किसी को कृष्णा क्या है वो मालूम नहीं, गीता क्या है मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, और वहां जाके किसी पाश्चात्य देश में प्रचार करना। आप सोचो इनका कितना गट्स रहेगा, उनके जो शिष्य थे उनके कितना, क्या उनका हृदय कितना चौड़ा हृदय होगा उनका, है कि नहीं। बट कैसे हो गया ये, क्योंकि वो भी अपने गुरु के मिशन के साथ जुड़ गए। उन्हें लगा कि हाँ प्रभुपाद जो हैं ये हमारे वेल विशर हैं, ये हमें ठगने नहीं आए हैं, ये हमें भक्ति, जो इस पूरे संसार में सबसे महत्वपूर्ण सबसे मूल्यवान चीज हमें देने के लिए आए हैं। तो उन्हें समझा कि ये इनका मिशन कुछ हमसे कुछ वो लेना नहीं चाहते, ही वॉन्ट्स टू ओनली गिव अस। तो जब उनको ये समझ में आया तो वो भी उनके इस मिशन से जुड़ गए। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक को उन्होंने अपने जीवन में लिया और उनके शिष्यों ने भी अपने जीवन में ले लिया। तो उनके शिष्यों में से एक एक शिष्य है जिनका आज उनका आविर्भाव दिन है 7 दिसंबर 1950। हाँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो उनका आज अपीयरेंस डे है। पिछले हफ्ते उनके तिथि के हिसाब से आप लोग का सत्संग हुआ था, तो श्यामराज प्रभु ने शायद प्रवचन दिया था, तो आज मेरा सौभाग्य है कि उनके कैलेंडर बर्थडे के हिसाब से आज उनका अपीयरेंस डे है। तो कुछ कुछ चीजें मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि कैसे ये जो एक मिशन होता है, ये मिशन कैसे, एक पर्पस जो लक्ष्य होता है जीवन का,
अगर गुरु का लक्ष्य आपने अपने जीवन में ले लिया तो कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आप सबके परमिशन के साथ, आई होप। हाँ तो पहला तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा उनका पर्पस हो, आपको उस पर्पस में जुड़ना है, उनके मिशन में, उनके मतलब उनका जो उद्देश्य है उसके साथ आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, ये सोचने में कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है। वी आर नॉट इमीडिएटली कन्विंस्ड। जैसे कि मैंने वो उदाहरण दिया कि वो लड़का था बीच पे वो सफाई कर रहा था, हाँ बाकी लोगों ने भी देखा रहेगा जो चल रहे हैं वहां पे वॉकिंग कर रहे हैं, ऐसा हट हट के बच बच के चल रहे हैं वहां से कचरे के बीच में से, लगे पागल है क्या, एक आदमी कितना कर सकते हैं। तो किसी किसी को हंसी आई रहेगी, किसी किसी को करुणा आई रहेगी, बेचारा पागल है लगता है। हाँ, किसी किसी को गिल्ट आया रहेगा कि मुझे भी करना चाहिए लेकिन यार जाना है, ऑफिस जाना है, कहाँ टाइम है ये सब करने के लिए, है ना। सो इमीडिएटली कोई जुड़ता नहीं है, थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि वो मिशन आपको इंस्पायरिंग लग रहा है, आपको उसमें प्रेरणा दिख रही है, लेकिन अभी तक वो श्रद्धा आई नहीं है कि मैं भी ये करूं। तो वो मिशन को अपना मिशन बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे जैसे मतलब वो पूर्ण निष्ठा के साथ उस पॉइंट तक आने के लिए कि हाँ ये मिशन मेरे जीवन का भी अभी से आगे से ये मेरे जीवन का मिशन है, उस पॉइंट तक आने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। इट मे टेक सम टाइम। बट एक बार वो मिशन को उठा लिया कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति हो, मैं सिर्फ ये इस्कॉन की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी मिशन हो, एक बार किसी ने वो पर्पस बना लिया अपने जीवन का कि ये मेरे जीवन का मैं पैदा इसके लिए हुआ हूं, है ना। वो कहते हैं कि देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में दो पल सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब जीवित व्यक्ति के लिए। हाँ, मतलब जो जो शरीर छोड़ने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण वक्त क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति अस्ति नत्र संशय। दैट अंत व्यक्त में, अंत पल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो तो इस भौतिक जगत को छोड़ के आप उनके धाम में चले जाओगे। याति अस्ति न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं गीता में 8.5। तो वो अलग है, लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए दो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पल जब वो पैदा होता है, जब आप पैदा होते हैं वो सबसे एक महत्वपूर्ण पल है आपके लिए। दूसरा पल वो है कि जब आपको समझ में आता है कि मैं क्यों पैदा हुआ था, है ना। हम लोग को किसी को ये अभी तक बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि मैं क्यों पैदा हुआ था। अरे ऐसे ही देखते देखते 52 साल निकल गए जिंदगी के, अरे क्या मतलब, why was I born, what was the purpose of my life? To understand takes time, समय लगता है वो, है ना। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं इसलिए पैदा हुआ था कि मैं ये कर सकूं, मेरे गुरु के इस मिशन में मैं इस तरह से उनकी मदद कर सकूं। ये समझते समझते कभी कभी जीवन निकल जाता है, किसी किसी को तुरंत समझ जाता है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो थे, वो उनका बुक किसी ने पढ़ा होगा शायद, जर्नी होम, किसी ने पढ़ा है यहाँ पे? हाँ, काफी लोगों ने पढ़ा है। तो जर्नी होम में वो बताते हैं ना कि कैसे वो पहले यूरोप गए थे, एक हॉलिडे के लिए गए थे, बट पहले ही दिन उनका बटवा चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, कुछ नहीं था उनके पास। तो वहां पे वो लोग, कुछ वो और उनके मित्र जो थे कुछ ऐसे मेडिटेशन ध्यान कर रहे थे, तभी उनको एक हृदय में उनको एक आवाज आई कि आप भारत जाओ, भारत जाओ। तो मतलब आप सोचो कि अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार विचार आया कि आप अपना शरीर, अपना अपना परिवार छोड़ के आप मंदिर में जुड़ जाओ, परिवार छोड़ के कुछ गलत, मेरा माइंड आई थिंक आज विचलित हो गया है, मेरे को कुछ गलत गलत चीजें आ रही है मन में। तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके मन में आया विचार। वहां से हिच हाइक करके, मैं ऐसे ऐसे मतलब ड्रॉप लिफ्ट ले लेके वो पाकिस्तान से इंडिया तक आए, इंडिया में आए, फिर इंडिया में काफी
ऑलमोस्ट 1 साल तक यहाँ पे थे, फिर प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद से पहली बार कहाँ मिले? वो पहली बार उनको यहाँ पे बंबई में ही मिले, क्रॉस मैदान में। और उसके बाद फिर से उनको वृंदावन में मिले, और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि ये व्यक्ति का, ये मैं इनका शिष्य बनूंगा। क्योंकि उसके पहले बहुत बहुत लोगों ने, बड़े बड़े महान लोगों ने इनसे पूछा था कि आप मेरे शिष्य बनना चाहोगे, और उनके मन में ये इच्छा भी थी कि मुझे शिष्य तो बनना है, मुझे किसी ना किसी का तो शरण लेना ही है, वरना मैं भगवान को कैसे समझ सकता हूँ। उनको ये मालूम था, लेकिन ही डिड नॉट इमीडिएटली टेक शेल्टर, ही वेटेड। नहीं नहीं नहीं, मतलब he was not convinced, but शिला प्रभुपाद से मिलने के बाद उनके मन में से जो भी शंकाएं थी सब चली गई, और फिर उन्होंने शरण लिया। तो थोड़ा समय लिया, लेकिन एक बार शरण लिया, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूरी तरह से उन्होंने भगवान श्री, पूरी तरह से उन्होंने शिला प्रभुपाद जी का शरण ले लिया। सो हम भी अगर अपने जीवन में किसी का मिशन, अपने जीवन का मिशन बना रहे हैं, तो ये नॉर्मल है ये, कि आप थोड़ा समय लो, सोचो कि ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है, या ये मुझे अच्छा लगता है, या मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। बट एक बार डिसाइड किया, एक बार आपने दीक्षा ली, एक बार आपने शरण लिया, उसके बाद पीछे नहीं हटना। तब तक आपको जितना सोचना है सोचो, सोचते रहो, जिंदगी भर सोचते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार दीक्षा लिया, एक बार शरण लिया गुरु का, उसके बाद हम अपना अस्तित्व उनके चरणों में रख देते हैं। वी लीव अवर आइडेंटिटी एट लोटस फीट ऑफ गुरु। दिस इज वॉट इनिशिएशन इज। ये बड़ी सीरियस चीज है। मतलब इनिशिएशन ऐसे नहीं कि मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, इनिशिएशन नहीं। ये बहुत ही एक गंभीर चीज है इनिशिएशन। सो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने समय लिया, लेकिन एक बार डिसाइड किया, उसके बाद कभी पीछे नहीं हटे। तो जब हम किसी का पर्पस, अपने जीवन का हम लोग पर्पस ढूंढ लेते हैं, जीवन का उद्देश्य ढूंढ लेते हैं, तो ये उद्देश्य जो है आगे जाके हमारे जीवन के सारे जो निर्णय हैं, सारे जो चुनाव है, जो भी चॉइसेस हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, दिस पर्पस विल स्टार्ट गाइडिंग दैट, इट विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग दैट। जैसे कि अगर मेरे फॉर मोमेंट, फॉर अभी फिलहाल के लिए, अगर मेरे जीवन का फिलहाल के लिए उद्देश्य ये है कि मुझे मेरा वजन कम करना है, मुझे मेरा वजन करना, क्योंकि मेरी सेहत खराब हो गई है, तो मुझे किसी भी हालत में वजन कम करना है, अगर ये मेरे जीवन का अभी एक टेम्पोररी उद्देश्य है, तो फिर क्या होगा? मेरे सारे निर्णय, अगर ये पर्पस है, मतलब एकदम स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि हाँ इच्छा है, किसी ने बोला प्रभु जी थोड़े मोटे हो गए, हाँ हाँ मुझे वजन कम करना है, ऐसा नहीं। मतलब एकदम अंदर से मुझे ये एक पूरी कन्विक्शन आ गई, मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। अगर इस तरह का दृढ़ संकल्प मैंने बनाया है, तो फिर मेरे सारे निर्णय उस संकल्प को पूर्ण करने में ही लग जाएंगे। I will not take any decision that will cause me to put on weight. I will control what I eat. I will exercise. मैं व्यायाम करूंगा, मैं खाने पे नियंत्रण रखूंगा, है कि नहीं? सो मेरे सारे निर्णय, मेरे सारे जो चॉइसेस, चुनाव हैं, वो सब उसी पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो वृंदावन में थे, उनको वृंदावन बहुत अच्छा लगा था, ये लव्ड वृंदावन। एंड जब वो मतलब शिल प्रभुपाद से मिले, तो शिल प्रभुपाद के अन्य शिष्य जो थे, उनको राधा स्वामी महाराज, तभी वो महाराज नहीं थे, तभी तो उनका नाम रिचर्ड स्लेवन था, उनको बोला कि ये क्या है, तुम वृंदावन में रह रहे हो, वृंदावन में तो सिर्फ जो एकदम एक्सॉल्टेड लोग हैं वो रहते हैं, तुम क्या यहाँ पे, तुमको वेस्ट में जाके प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद जी के लिए तुमको वेस्ट में जाके प्रचार करना चाहिए, वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद से मिले, और शिल प्रभुपाद से उन्होंने, मतलब शिल प्रभुपाद ने उनको पूछा कि आपको वृंदावन अच्छा लगता है? तो हाँ मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोला मुझे भी वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा एक उन्होंने कहा,
लेकिन जब उन्होंने अपना हृदय शिल प्रभुपाद को दे दिया, फिर उन्होंने निर्णय किया कि ये वृंदावन में रहना, ये निर्णय मेरा निर्णय है, क्योंकि मुझे वृंदावन में रहना है। लेकिन मेरे गुरु क्या चाहते हैं? मेरे गुरु ये चाहते हैं कि मुझे वहां जाके सेवा करना है वेस्ट में, तो मैं वहां जाऊं। तो मेरे जीवन का जो निर्णय है, उनका जीवन का जो निर्णय है, वो उन्होंने बदल दिया। क्यों? ताकि गुरु की सेवा बेस्ट कैसे हो सके। हाँ, सो ही लेफ्ट एंड ही वेंट टू न्यू वृंदावन इन यूएस। न्यू वृंदावन में वहां पे 12 साल तक रहे वो, 12-13 साल तक रहे। इवन ऐसा, अभी आप सोच सकते हो कि अभी वृंदावन, न्यू वृंदावन चले गए, उनका वीजा भी एक्सपायर हो गया था, अभी वापस वीजा आ गया इंडिया का, तो आ सकते थे, अभी हो गया ना, चलो सेवा वेवा कर लिया, चलो अभी मैं वृंदावन जा रहा हूं। पर वो नहीं गए, वहीं पे रहे। अच्छा, कोई कह सकता है कि चलो शिल प्रभुपाद हैं, तब तक मैं, मेरे गुरु हैं, अभी गुरु है तो गुरु का आदेश का पालन करना पड़ेगा। अभी गुरु चले गए 1977 में, 6 साल बाद, मतलब महाराज गए न्यू वृंदावन, 6 साल में शिल प्रभुपाद चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। तो तभी वो निर्णय कर सकते हैं कि ठीक है, अभी गुरु महाराज भी नहीं है तो भी मैं जा सकता हूं। वो फिर भी नहीं गए, ही वेटेड देयर, बिकॉज उनका ये मानना था कि शिल प्रभुपाद जी ने मेरे अथॉरिटी को जो सेवा दी है, वो सेवा उन्होंने मुझे दी है, तो वो सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो मैं ये सेवा छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो टिल ही वॉज टोल्ड, ही डिड नॉट गो। फिर पहले जो इनिशियल उनके साल थे जहाँ पे न्यू वृंदावन में रहते थे, उनको बहुत बाधाएं आई, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई, बट ही नेवर गिव अप, ही कंटिन्यूड, ही स्टेड देयर। फिर कुछ सालों बाद 1979 में, मतलब 8 साल हो गए थे न्यू वृंदावन में, तभी उनको आदेश दिया गया कि आप कॉलेज प्रीचिंग चालू करो। तब तक कुछ नहीं था। वो एक माउंटेन पे रहते थे, वहां पे जो डीटीज थे, वो डीटीज की रोज सेवा करते थे और गायों का सेवा करते थे और दूध निकाल के, मतलब दैट वाज हिज सर्विस। दिन में हार्डली 3 घंटा सोते थे। 6-8 साल के लिए उनकी ऐसी तपस्या थी, बहुत कठिन था। बट अचानक एक दिन बोला, ये सब छोड़ो, अभी आप कॉलेज प्रीचिंग करो। कॉलेज में जा, तो कॉलेज में जाके उन्होंने प्रचार चालू किया, और 3-4 साल के अंदर 5-6 कॉलेज प्रोग्राम चालू हो गए। अच्छा, मतलब आप जानते ही हैं राधा स्वामी महाराज कैसे प्रचार करते हैं, बहुत सुंदर प्रचार करते हैं। तो 4-5 साल में फ्लरिशिंग कॉलेज प्रोग्राम्स चालू हो गए। तब क्या हुआ, उन्होंने उनको फिर आदेश आ गया, ये सब छोड़ो, आप इंडिया जाओ। इंडिया, मतलब उनको तो इंडिया जाने का पहले से ही इच्छा था, लेकिन अब जब ये प्रोग्राम चालू हुए हैं, यहाँ पे प्रचार हो रहा है, यहाँ पे अच्छा कल्टीवेट हो रहा है डिवोटीज, उनको अचानक बोला ये छोड़ो, आप इंडिया जाओ। तो इनका क्या होगा? नहीं, इनका हम देख लेंगे, आप जाओ। श्योर देख लेंगे, हाँ श्योर देख लेंगे, आप जाओ। और वो चले गए। अभी अगर उन्होंने तभी ये निर्णय लिया होता कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहाँ पे बड़े कठिनाई से 5 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पे हूँ, आई एम हैप्पी हियर, लेट मी सर्व हियर, ही कुड हैव पुट हिज फुट डाउन, ही कुड हैव सेड नहीं, मुझे यहीं पे सेवा करना, मैं नहीं जाऊँ। थोड़ी कोई जबरदस्ती है। बट उनको उनके अथॉरिटी ने आदेश दिया, तो उन्होंने माना कि ये आदेश मेरे गुरु से ही आ रहा है, तो उन्होंने वो मान लिया और भारत देश फिर से वापस आए। और वो आए करके श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर हमारा स्थापित हुआ, और इसीलिए हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं, तो ज्यादातर राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया कि जैसे गुरु ने बोला है, गुरु के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो बताया है, बस मैं उसी का पालन करूंगा। सो अपने जीवन को, जैसे किसी का लक्ष्य है कि मुझे गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु की सेवा करना है, तो फिर वो उस लक्ष्य में जो भी मुझे करना है मैं करूंगा, जो भी निर्णय मुझे लेने में लूंगा। सो ऐसे इवन श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे 1986 में। यहाँ पे भी बहुत आसान नहीं था, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, ही हैड अ ग्रेट डिफिकल्ट टाइम इन इनिशियल ईयर्स, बट ही परसिस्टेड। उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब डटे रहे कि नहीं करना है, मुझे आदेश दिया गया तो मुझे तो करना है। तो बड़े डटे हुए रहे, उसीलिए इतना सुंदर कांग्रेगेशन बन पाया। फिर और एक बात है, अगर किसी का
पर्पस स्ट्रांग है, जीवन का उद्देश्य, मतलब गुरु के साथ जुड़े हैं, जो भी उद्देश्य एकदम अगर स्ट्रांग है, तो फिर उससे उनके जो गोल्स हैं, हाँ, टू कोल्ड, इज इट टू कोल्ड? तो फैन बंद कर दो ना। नहीं, वो बंद ही नहीं हो रहा है। रेगुलेटर बंद कर दो ना। हरे कृष्णा। हाँ, हो गया। हाँ, अगर किसी के जीवन का लक्ष्य एकदम फिक्स्ड हो, एवरीवन ओके, एवरीवन विद मी, हरे कृष्णा। तो अगर जीवन का लक्ष्य एकदम फिक्स हो जाए, तो उनके जो गोल्स हैं कि ये साल में क्या करना है, अगले साल में क्या करना है, अगले 6 महीनों में क्या करना है, अगले 3 महीनों में क्या करना है, ये भी उस लक्ष्य की तरफ ही फिक्स हो जाता है। और अपना रोज का समय कैसे बिताना है, ये भी उसी लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जिसके मन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, बस रोज टाइम पास करो, सुबह उठो, मतलब इवन डिवोटीज में होता है, भक्तों में भी होता है कि सुबह उठो, स्नान करो, जपा करो, सोला माला करो, उसके बाद ऑफिस जाओ, घर पे आओ, फोन उठाओ, फोन पे टंग 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 वो एक्सरसाइज करो फोन पे, और फिर रात को वो फोन रख दो, सो जाओ। ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता, ये जीवन का कार्य कार्य है, कार्य प्रणाली है। लेकिन लक्ष्य क्या है आपके जीवन का? आप ये क्यों कर रहे हो? वाई यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा? आप इस प्रोग्राम में क्यों आए हो? क्या लक्ष्य है यहाँ आने का? हम लोग कभी ऐसा सोचते नहीं है ना? लेकिन अगर अपने जीवन में लक्ष्य है, तो हम लोग ये सोचने चालू करेंगे कि अरे मेरे जीवन में ये लक्ष्य है, तो मैं अभी जो कार्य कर रहा हूं, ये इस लक्ष्य में क्या हेल्प कर रहे हैं? इज इट हेल्पिंग? इज इट हेल्पिंग मी इन माई पर्पज ऑफ लाइफ? इफ इट्स नॉट हेल्पिंग, देन वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम? सो व्यक्ति ये सोचने लगता है। तो ये इस सिचुएशन में मैं आपको उदाहरण देता हूं कि लक्ष्य क्या है जीवन का, ये हमें बार बार इसके बारे में मनन करना चाहिए, बार बार इसके बारे में सुनना चाहिए, है ना? हम लोग को तो बताया गया है हम कौन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हाँ, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, ये हम लोग को बताया गया है कि our goal of life is to understand we are not this body, we are part and parcel of Krishna, and we have to serve Krishna and develop pure love for him. This is goal of life. ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो मुझे ये सोचना चाहिए ना, जैसे रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर फॉर्मूला देते हैं, 4 शब्दों में, ज्यादा सोचना नहीं है, एकदम सिंपल 4 शब्दों का फॉर्मूला जो सारे जीवन के लिए लागू है, सिर्फ आध्यात्मिक जीवन नहीं, अपना भौतिक जीवन में भी ये काम आता है। अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो अनुकूल है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए जो कार्य, जो मनोवृत्ति, जो सेवा, जो अनुकूल है, संकल्प, उसका संकल्प बनाओ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, यही मेरे जीवन, मैं इसके करके रहूंगा, करके रहूंगी। ये संकल्प, अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अगर ये अनफेवरेबल है, ये मेरे लक्ष्य को ये पास मुझे नहीं लेके जा रहा है, सपोज आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू गो टू टॉप ऑफ माई प्रोफेशन, मैं जो भी प्रोफेशन में उसके टॉप में मेरे को जाना है, अगर ये मेरा लक्ष्य है, तो फिर मैं फोकस्ड रहूंगा कि अरे ये लक्ष्य के लिए अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे लक्ष्य में कोई योगदान नहीं दे रहा है, ये मुझे पीछे लेके जा रहा है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? लेकिन अगर फोकस ही नहीं है लक्ष्य पे, तो व्यक्ति कुछ भी करते रहेगा दिन भर, वो सोचेगा भी नहीं कि मुझे क्या करना है, वही करते रहेगा, वही करते रहेगी जो रोज करते हैं। लेकिन लक्ष्य है तो एकदम फोकस। तो आप राधानाथ स्वामी महाराज को अगर देखते हैं, रोज रोज एक साधना की तरह रोज शिल प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं, एवरी डे। इफ यू हियर हिज लेक्चर्स, उनके अगर प्रवचन आप सुनेंगे,
बहुत बार वो लेक्चर में कहते हैं कि आज सुबह मैं श्रील प्रभुपाद जी का ये प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बात कही, और फिर उस बात को वो विस्तार करते हैं। सुना है आप लोग ने, देखा है, बहुत बार ऐसे कहते हैं। सो ही हियर्स एवरी डे। वो सुनने से क्या होता है, क्या होता है, रोज सुनने से अंदर जाता है, और उससे क्या होता है, हाँ, लक्ष्य स्ट्रांग हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये मतलब प्रभुपाद जी ने बोला है, बार बार यही बोल रहे हैं, ये मैं अभी कर नहीं रहा हूं, मुझे अभी करना है, या मैं कर रहा हूं ये बहुत स्लोली कर रहा हूं, मैं अभी इसको स्पीड पकड़ना है, मेरे पास अभी पता नहीं कितने साल बाकी हैं, जितने साल बाकी हैं अभी इसमें मेरे को स्पीड पकड़ना। सो रोज अगर हम लोग अपने लक्ष्य के बारे में सुनेंगे, अपने गुरु की वाणी सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा। तो अगर आप देखें जो महाराज के जो गोल्स हैं जिंदगी के, जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिए हैं या जो खुद कर रहे हैं, ये सारे श्रील प्रभुपाद जी के इच्छाओं पे आधारित हैं। What has Srila Prabhupada expressed in his desires? What is he expressed in his lectures? क्या उन्होंने व्यक्त किया है कि मुझे ऐसा करना है, वही वो कर रहे हैं और उसी का पालन कर रहे हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीचिंग हो टू द वेस्टर्नर्स। सो इस्कॉन शुरू कैसे हुआ? श्रील प्रभुपाद प्रीच टू द वेस्टर्नर्स, not to the Indians living there. He preached to the Westerners, the Americans, the Europeans, the Africans. उनको प्रचार किया प्रभुपाद ने, है कि नहीं? इस्कॉन शुरू तो यहां से हुआ, बाद में इंडिया में आया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी जो प्रचार यूएस में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ज्यादातर हमारे देसी हैं जो वहां गए हुए हैं। So most of the preaching is happening to the Indians who are, to the NRIs who are living there. So महाराज ने इसको देखा, समझा, और वो अलग से एक एफर्ट डाल रहे हैं कि वेस्टर्नर्स को कैसे भक्ति में लाया जाए, अलग अलग इनोवेटिव तरीकों से प्रचार करके उनको कैसे हम लोग भक्ति में लेके आए। उसी लिए हमारा गोवर्धन इको विलेज बना है, उसी लिए यूएस प्रीचिंग का अलग से एक इनिशिएटिव चल रहा है कि यूएस में कौन वेस्टर्नर्स को प्रीच कर सकता है इनोवेटिव तरीके से। सो देखो, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, दैट इफ यू आर फोकस्ड ऑन द गोल देन यू विल स्पेंड टाइम ऑल्सो अकॉर्डिंगली। तो कोई कोई डिवोटीज कहते हैं कि वो अपना समय बहुत सारा यूएस में स्पेंड कर रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो इच्छा है उसकी अभी तक पूर्ति हुई नहीं है, तो इसीलिए वो इस पर समय बिताते हैं। फिर another thing that Prabhupada gave lot of importance to was hearing and chanting. You know, Prabhupada wanted that his disciples have Bhagavatam every day. रोज भागवतम सुने, उनके पुस्तक पढ़ें और हरिनाम करें, संकीर्तन करें, चैंटिंग करें। इसलिए महाराज ने इतना एम्फोसिस दिया है अपने जीवन में, अपने शिष्यों को, अपने मंदिरों में इतना उन्होंने एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दिया है टू हियरिंग एंड चैंटिंग। उसीलिए ही हैज पुश्ड वेरी हार्ड, बहुत धक्का दिया है उन्होंने इसके लिए। उन्होंने मतलब पहले हमारा मंदिर जो था राधा गोपीनाथ मंदिर, अगर आप समझो 30 साल पहले देखते तो आपको उस मंदिर में आने का मन भी नहीं करता, इतना मतलब बहुत दिक्कतें थी वहां पे। तो उन्होंने धीरे 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 पुश कर करके पूरा मंदिर हम लोग का बन गया, वो पूरा परिसर हमारा बन गया। फिर उसके बाद साउंड सिस्टम, कि लोगों को अच्छे से सुनने को आना चाहिए लेक्चर, साउंड सिस्टम में पहला पैसा डाला, पहला इन्वेस्टमेंट साउंड सिस्टम पे डाला। फिर उसके बाद उन्होंने सब सीटिंग कंफर्टेबल किया, मतलब बैठने के लिए अच्छी जगह बनाई थी, वो टाइल्स निकाल के अच्छे से वुडन फ्लोर डाला। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो थोड़े वरिष्ठ लोग हैं उनको कुर्सियों की जरूरत है, तो कुर्सियों का प्रबंध किया। फिर उन्होंने देखा कि डिवोटीज गर्मी में आ रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं, कीर्तन संकीर्तन कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है उनको, तो उनके लिए एसी लगवाया। ओके। फिर प्रसाद, प्रसाद पहले बहुत सिंपल था, फिर प्रसाद भी अच्छा बन गया। हाँ, सो इवन जो लोग आते हैं उनके बच्चे अगर तंग कर रहे हैं तो माता पिता सुन नहीं सकते, तो बच्चों के लिए प्रबंध किया। मतलब हर तरीके से फोकस क्या है, लक्ष्य क्या है, हियरिंग एंड चैंटिंग शुड गो ऑन प्रॉपरली। एवरीवन हु इज कम, जो भी मंदिर में आ रहा है उनको सुनने का
कथा सुनने का एक मौका मिलना चाहिए. सो वेरी नाइसली ही एस्टैब्लिश्ड ऑल दिस. फिर दैवी वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे कम्युनिटी बनाए. ये जो कम्युनिटी डिवोटी केयर, ये उन्होंने क्यों एस्टैब्लिश किया? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फिलॉसफी सुने लेकिन उनके जीवन में क्लेश ही क्लेश है और उनको हैंडल करना आता नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये डिवोटी केयर सिस्टम सेटअप किया. तो आप देखो कि लक्ष्य वही है कि गुरु की सेवा, गुरु का मिशन जो है उसको फुलफिल करना है. लेकिन उस लक्ष्य में छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं वो ये सब है, और ये पालन करने से अल्टीमेटली जो गुरु का लक्ष्य है वो उसका फुलफिल होगा. उसीलिए दैवी वर्णाश्रम सिस्टम में जो डिवोटीज हैं उनको पूरी तरह 100% कीपिंग देम फोकस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड द मूड ऑफ श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद जी के आदेश क्या थे, उनके हृदय का क्या मूड था, क्या उनका विचारधारा थी, इस पे पूरी तरह से सबको हमेशा फोकस रखते हैं महाराज. कैसे? डीटी वर्शिप के थ्रू, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, हियरिंग एंड चैंटिंग, यात्रास, ऑल दिस प्रभुपाद वांटेड. प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये सब हो. तो इस कांग्रेगेशन में ये होता है. क्यों? क्योंकि एक किसी शिष्य ने ये निर्णय लिया कि मेरा जीवन जो है श्रील प्रभुपाद जी की इच्छाओं को पूर्ति करने में लग जाएगा. उन्होंने ये मिशन बनाया तो उनके शिष्यों ने उनकी मदद की, उसीलिए हो रहा है. तो कोई अपना समय, कोई भी लक्ष्मी या अपनी ऊर्जा, वो किसी भी तरह से कोई भी चीज में वो वेस्ट नहीं करते जो श्रील प्रभुपाद जी के उद्देश्य के साथ जुड़ा नहीं है. इसे कहते हैं एकेह कुरुनंदना, वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन, की बस मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं करना, यही करना है. अच्छा, अभी आप पूछेंगे ये सब तो ठीक है, हमारे जीवन में हमें क्या करना है? What can we do? What can we learn from the lives of such great souls? ऐसे महान व्यक्ति जो हैं उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं? तो पहले तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि आज हमारा सिचुएशन क्या है. बहुशाखा ही अनंत. ये हम लोग बहुशाखा, हम लोग के बहुत सारे गोल्स है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी है, वो भी है, वो भी. हम लोग पूरे डाइल्यूटेड है. हम लोग का जीवन का एक कोई मिशन या लक्ष्य नहीं है. हमें अभी तक ये नहीं मालूम है कि हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों पैदा हुए थे, अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया है. वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज मिशन ऑफ आवर लाइफ. लेकिन जब हम किसी गुरु का शरण लेते हैं, जैसे आई बिलीव देयर आर सम पीपल हु हैव रिसेंटली गॉट इनिशिएटेड, तो जो गुरु का शरण लेता है या लेती है, उनका क्या हो जाता है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है कि हम लोग एट दैट मोमेंट जब हमने गुरु का शरण लिया, हम लोग क्या बोलते हैं? आई विल चैंट मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा, आई विल फॉलो 4 regulative principles, and I will try to serve in the mission. प्रभुपाद जी के मिशन में आई विल ट्राई टू सर्व एज अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट. यही कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं है? इनिशिएशन में यही कहते हैं. तो समझो आप क्या बोल रहे हो, उसका महत्व एक बार समझो. यू आर सेइंग कि गुरु का जो मिशन है श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि गुरु का मिशन और प्रभुपाद के मिशन में कोई अंतर नहीं है, सेम है. प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसी में गुरु सेवा कर रहे हैं, आप उसी मिशन में ज्वाइन हो रहे हो. समझ रहे हो? तो ये जब आप एक व्रत लेते हो तो वो उनके गुरु का जो मिशन है वो आप अपने जीवन का भी मिशन बना रहे हो. तो बहुत सीरियस गंभीर निर्णय ले रहे हो, गंभीर व्रत ले रहे हो आप, सोच के, है ना. तो जब हम लोग ये व्रत लेते हैं तो हमको भी धीरे धीरे अपने जो जिंदगी के जो रोज के कार्य हैं उनको अलाइन करना है. वी हैव टू अलाइन आवर एक्टिविटीज टुवर्ड्स गुरुज मिशन. अगर हमारे रोज के एक्टिविटीज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और गुरु का मिशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे हमारे एक्टिविटीज को फिर से गुरु के मिशन की तरफ जोड़ना है ना. अगर हम लोग मिशन को अलाइन नहीं कर पाए, हमारा जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. प्रभु जी आपको आइडिया ही नहीं है, मेरा जीवन बहुत टफ है, बहुत कठिन, मैं गुरु के मिशन के साथ अलाइन नहीं कर सकता. कोई बात नहीं. जो प्रामाणिक भक्त है, सिंसियर, जो सिंसियर डिवोटी है,
वो एटलीस्ट ये प्रयास करता है व्यवसायत्मिका बुद्धि की कंप्लीट फोकस, एटलीस्ट आई विल ओनली डू दोज थिंग्स दैट विल प्लीज गुरु एंड प्लीज द वैष्णवस। कम से कम, वो बोलते हैं ना कि अगर तुम मदद नहीं कर सकते कम से कम बाधा तो मत बनो, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को कभी कभी, या कोई, या पत्नी अपने पति से कहती है कि यार तुम घर में अगर मदद हाथ नहीं बटा सकते कम से कम मेरा काम तो मत बढ़ाओ। बोलते हैं ना, एक एक माताजी लोग बोलते हैं, मैंने भी सुना है। तो तो हाँ, तो ऐसा होता है। तो हमें समझना चाहिए कि गुरु के मिशन में व्हाट कैन आई डू, एटलीस्ट आई डोंट वांट टू बी अ hindrance, let me serve in such a way that I can please guru, let me do my seva, let me do my sadhana in such a way that guru and vaishnavas are pleased। आप कहेंगे प्रोजे कुछ भी करने को टाइम नहीं है, मेरा सेहत बहुत खराब है, मैं बस अपना 16 माला कर सकती हूँ और ये प्रोग्राम आ सकता हूँ, ये भी सेवा है। आप प्रोग्राम में क्या सेवा, ये भी सेवा है। जस्ट कमिंग टू प्रोग्राम रेगुलरली, sitting and hearing for 1 hour, 1.5 hours, this is also seva, you are contributing to mission of guru। क्योंकि अगर कोई आके बैठे नहीं तो प्रचारक क्या बोलेगा, किससे बात करेगा, दीवारों से बात करेगा। आप आ रहे हैं, प्रेरणा, उसको भी प्रेरणा मिलती है बोलने की। सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग बाय जस्ट कमिंग हियर, जस्ट बी सिंसियर। सो हमें क्या है, अंत में मैं कहूंगा कि हमारे लिए अभी इस महीने में, हमारा ये कौन सा महीना चल रहा है, हाँ मार्गशीर्ष, दिसंबर महीना चल रहा है। तो ये दिसंबर महीने में, क्योंकि हमारा वैकुंठ एकादशी इसी महीने में, वैकुंठ नहीं सॉरी, मोक्षदा एकादशी इसी महीने में आता है जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी। तो इस महीने में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता, कृष्णा बोक, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये इत्यादि जो श्रील प्रभुपाद ने 80 किताबें लिखी हैं, तो इन किताबों का वितरण करते हैं। तो हमारे जो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने दुनिया भर में ये इस महीने का मिशन बनाया है कि हम लोग प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करेंगे। तो आप सबसे मैं इसी निवेदन के साथ अपना जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक विराम दूंगा कि ये जो मिशन है दिसंबर महीने का, कि सबको पुस्तक वितरण करना है, हर परिवार को कम से कम 50-60 पुस्तकों का वितरण करना है। अगर आपके पास भागवतम नहीं है तो आप भागवतम घर पे ले आओ। अगर आपके पास घर पे चैतन्य चरितामृत नहीं है तो आप ले आओ। आपके पास गीता तो होगी, गीता नहीं है तो गीता ले आओ। अगर लीलामृत नहीं है तो लीलामृत ले लो। लेकिन contribute in the mission of Srila Prabhupada and his disciples by being part of this book distribution mission। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की, शिल गुरुदेव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा टाइम से आगे गया। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न या कोई, एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? यस माता जी। हाँ। ये एक्चुअली मैंने नहीं कहा, मेरी वाइफ ने कहा, वहां बैठी हो। मैंने बस वो रिपीट किया। पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। हाँ। काइनेस्थेटिक। माइक दे दो। जाएगा वहाँ तक? ठीक है, वहाँ तक जाएगा नहीं।
बट हमें उससे सीखना यह है कि हमको बहुशाखा ही अनंतस्य नहीं करना है. वी डोंट वांट टू बॉदर अबाउट सो मेनी इंटेलिजेंस. आवर इंटेलिजेंस विल बी इफ वी टेक शेल्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु. देन उसमें इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने जीवन में एक पर्पस बना लिया कि ये मेरे जीवन का पर्पस है, आपके पास किसी इंटेलिजेंस की कमी है कि मुझे लोगों के साथ डील करना नहीं आता है, मुझे मैथ्स आता है, बोलना आता है, बट लोगों के साथ डील करना नहीं आता. लेकिन अगर आपके जीवन का लक्ष्य है तो आप वो सीख जाओगे, आपको वो इंटेलिजेंस आ जाएगी. कृष्णा सेज दैट तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते. That if one is worshipping me with great devotion and great determination, then I provide them the intelligence. Dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti, by which they can come back to me. So we don't have to worry मेरे पास ये वाला है, ये वाला नहीं है, इसका क्या, उसका उस सोचना नहीं है. हमको सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य के अनुसार जो भी हमको चाहिए, Krishna provides what we lack, he preserves what we have. That also he has said, योगक्षेमम वहाम्यहम. वो भी कृष्णा ने बोला है. सो भगवत गीता बड़ा प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर है, ऐसा कोई थियोरेटिकल नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल. कृष्णा हर तरीके से हम लोग को बता रहे हैं कि जीवन को कैसे आपको व्यतीत करना है, और मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ. सो लाइक दैट. हरे कृष्णा. एनीबडी एल्स और शैल वी कंक्लूड हियर? हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की. निताय गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल.